Assalamualaikum viewers, welcome back to our show Coffee with Class. This is your host for today, Atika Ishaq. As we have promised to answer all your queries, we have invited a very eminent personality of educational sector, especially higher education, who is a role model for many students as well as teachers. Talking about her professional career, she has organized many seminars and hosted many events and currently serving as head of English department, president of Class Society and chief editor in literary magazine Bookish. Yes, you have guessed it right. It is your very own Miss Ramsha Zabta. Assalamu alaikum ma'am, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसी हैं? Alhamdulillah ma'am. First of all ma'am, I am very confused to take your interview as you have hosted many events and you are a good orator. कोई बात नहीं आपका. Thank you so much. That's your love for me. You don't have to be confused because I know you are very capable, mashallah. Let's begin with the show. My very first question is, ma'am, how do you see your English department with other departments in KIMS? Anka, this is so basic, okay? So you need to understand it very clearly. English department plays a vital role in every department. Why? Because effective communication is a crucial part of every field. May it be, we talk about like pharmacy, DPT, HND, CS, IT, BBA or any department. Communication is always very necessary, factor of that department. आप ये देखें कि in academic setting, English department basically helps students to develop that critical thinking. They basically learn those writing skills, those speaking skills और इनको सीखने का हमारा मकसद क्या है. आप ये देखें कि ये सिर्फ इंग्लिश डिपार्टमेंट में तो कन्फाइंड नहीं है कि हमने अच्छा बोलना है या अच्छा लिखना है. इट इज़ द नीड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, ऑफ एवरी स्टूडेंट. ऐसे ही है. आप ये देखिए, हमने प्रेजेंटेशंस बनानी है, बच्चों ने रिसर्च वर्क करना है, बच्चों ने प्रेजेंटेशंस देनी है, रिपोर्ट राइटिंग है, बहुत कुछ है. ठीक है. इसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट फॉस्टर करता है बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग फॉस्टर कर रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग फॉस्टर कर रहा है. बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखने को मिल रही हैं, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपको सीखने को मिल रही हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जब तक इंग्लिश डिपार्टमेंट का रोल रहेगा, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस करता रहे. Okay, let's move toward the second question. My second question is, ma'am, how much a good communication is important in achieving goals? Okay, good communication plays a vital role, ठीक है, in achieving your goals. Why? Because when we interact, okay, communication is basically of two types. So this is like again very basic. One is verbal and the other one is non-verbal. तो हमको इन दोनों को साथ लेके चलना. ठीक है. जब आप इन दोनों को साथ लेके चलते हो, आप वर्बली स्ट्रॉन्ग हो, दैट मीन्स योर स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड यू आर गुड एट योर नॉन वर्बल्स एज वेल. नाउ व्हाट डज नॉन वर्बल बेसिकली इंक्लूड्स? It includes your postures, your gestures, your facial expressions, your hand movements and paralanguage as well. ठीक है. Paralanguage is basically जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मेरी टोन क्या है, मैं शिवर तो नहीं कर रही हूँ. ठीक है. क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ. फिर अगर मैं फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करूँ तो टेल्स वेरी क्लियरली कि आप किसी में कितना इंटरेस्टेड हो उसको सुनने में और उससे बात करने में. तो जब आप अच्छी इंटरेक्शन कर रहे हो, आइडियाज शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आपको फीडबैक कोई आ रहा है, तो आपको प्रोग्रेस करने में कम्युनिकेशन हमेशा बहुत हेल्प करती है. आपको वो गोल्स जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप कलेक्टिवली सबके साथ मिलके कम्युनिकेट करके बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो. ठीक है. इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं हम थ्रू कम्युनिकेशन. बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देखिए जब भी कहीं कोई इशू चल रहा होता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम कम्युनिकेट करें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सके. ठीक है. जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर रहे हो तो डेफिनेटली एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हो. ठीक है. तो डेफिनेटली गोल अचीव करना इज मच ईजियर विद द हेल्प ऑफ गुड कम्युनिकेशन. Okay, my third question is, ma'am, what are qualities of a good communication? गुड कम्युनिकेशन हैज सो मेनी फैक्टर्स. ठीक है. जो और वो इतना मुश्किल भी नहीं है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव क्लैरिटी इन योर स्पीच और योर एक्सप्रेशन, ईदर इट इज रिटन और स्पोकन. आपने क्लैरिटी लानी है. क्लैरिटी मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो. ठीक है. और उसके पीछे उसका एम क्या है. देन वी हैव, हमारे अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है दैट इज एक्टिव लिसनिंग. जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो मैंने आपको बोला था इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, राइट. जहाँ आप बात कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, उतना लिसनिंग का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में. तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है. आपने
हमेशा स्पीकर को ये चीज रियलाइज करानी है कि स्पीकर इज इम्पोर्टेंट एंड यू आर लिसनिंग टू हिम और हर वेरी अटेंटिवली। ये बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू पुट सम एम्पैथी इन योर कम्युनिकेशन एज वेल। व्हाट इज एम्पैथी? You need to understand the difference between sympathy and empathy. Okay, sympathy is I feel for you, मुझे आपसे हमदर्दी है। Empathy is like feeling for you and then making you realize that there is somebody who's there to listen to you and maybe to help you in solving that problem as well, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली हमारे डेली कम्युनिकेशन में या तो हम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं या हम प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं जिनका हमें सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो एक्टिव लिसनिंग इस चीज में बहुत ज्यादा हाथ उसका है, ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। उसके बाद आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है, स्पीकर को लिसनर की तरफ और लिसनर को स्पीकर की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है और फीडबैक अगेन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर इंडल्ज करनी है, ठीक है, इनमें इंडल्ज होना है ताकि हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकें। Okay ma'am, my next question is in your views what are the main barriers in communication? Yes, जहाँ पे we have like so many factors for like effective communication, वहाँ पे students has to face so many barriers as well, and I'm not only talking about students, it can be any individual, okay, in our society that can face communication barriers. सबसे पहला जो आता है that is language barrier. Language barrier is like जैसे कि if somebody has good command on English speaking and the other one is not having that much effective command, तो language barrier तो already आ गया, ठीक हो गया। Like if I go to some like everybody is mashallah getting education, लेकिन मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाती हूँ जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जो इंट्रोड्यूस नहीं है और मैं उसको जाके कहूँ कैन यू प्लीज पैक मी 1 dozen of bananas or something like that, and if he doesn't know द लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, तो बैरियर तो ऑलरेडी आ गया कि कम्युनिकेशन तो वहां नहीं हुई, बिकॉज इट इज अ 2-way प्रोसेस। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे लिसनर, स्पीकर, इनकोडिंग, डीकोडिंग सब कुछ बहुत जरूरी है। तो लैंग्वेज का बैरियर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपकी लैंग्वेज नहीं मिलती है वहां बैरियर आता ही आता है। हमारे बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, और उनको आइल्स करना पड़ता है। आइल्स क्यों करना पड़ता है? फॉर द प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, अदरवाइज वहां जाके हमारा लैंग्वेज बैरियर आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। देन वी हैव कल्चरल डिफरेंसेस एज वेल, ठीक है, हमारे कल्चर में और अगेन हमारे लिसनर के कल्चर में फर्क है, तो कल्चरल बैरियर भी वहां पे जरूर होगा। देन वी हैव सम लाइक नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनको आप कह सकते हो, ठीक हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप ये देखें कि इफ वी आर हैविंग दिस इंटरव्यू, ठीक है, और अगर बाहर कहीं कुछ काम चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या मे बी हमारा फैन आवाज कर रहा है, तो जब आप मुझे क्लियरली ऑडिबल ही नहीं हो तो एक बैरियर तो आ गया, ठीक है। इसको नॉइज या डिस्ट्रैक्शन बैरियर भी कह सकते हैं। या जहां हम बैठे हो वहां ट्रैफिक का बहुत शोर हो, हॉर्न की आवाज आ रही हो, पीपल आर ब्लोइंग हॉर्न्स या मे बी पीपल आर लाफिंग एंड क्लैपिंग एंड समथिंग लाइक दैट, तो ये तो हमारा एक डिस्ट्रैक्शन इसमें आ गई, ठीक है। देन वी हैव अनदर वेरी क्रूशियल बैरियर दैट इज लाइक एक्टिव लिसनिंग का ना होना, लाइक लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। लैक कैसे है? आजकल के जमाने में मैंने जो चीज नोटिस की है एज अ टीचर, वो ये है कि स्टूडेंट्स या हमारे इर्द गिर्द के लोग, दे आर सो मच इनटू सोशल मीडिया एंड एप्स एंड मोबाइल फोन्स, और बहुत दफा ऐसा होता है कि वंस वी आर इंटरेक्टिंग विद देम, तो व्हाट डू? They basically turn on their mobile phones and they just like if this is like my phone and you are talking to them, they'll just be nodding their head and they are continuously scrolling down and up all the time on their phones. तो एक्टिव लिसनिंग कैसे होगी जब आपकी अटेंशन डाइवर्टेड है ऑलरेडी एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर? तो आपको कैसे बात समझ आएगी? वैसे भी ये बेसिक एथिक्स के टोटली अगेंस्ट है बात कि, और आप इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए ना क्या है। हमारी यंग जनरेशन हमारे सोसाइटी से दूर होती जा रही है। They are so much into like interacting with people on social media rather people sitting next to them. पेरेंट्स इग्नोर हो रहे हैं, टीचर्स के लेक्चर्स इग्नोर हो रहे हैं। लैक वाई? बिकॉज देयर इज लाइक अ बैरियर, कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया है। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास एक ऐसा गैजेट आ गया है जो हमें कम्युनिकेट करने नहीं दे रहा है, और कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब लिसनर फीडबैक दे रहा होता है, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। हमने बेसिक
एथिक्स को, एटिकेट्स को साथ लेके चलना है. इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू, यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव टू देम. यू हैव टू, आप फोन साथ रखना भी, लाइक मैंने भी ये रखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी एक मैसेज दे रहा है कि दिस थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी. ठीक है. सो जब आपने बैठना है कहीं पे, किसी से बात करनी है, आपने एक तो एथिक्स भी है, दूसरा आपने बैरियर को अवॉइड करना है. और इस बैरियर को आप ऐसे अवॉइड कर सकते हो कि आप अपने फोन को बिल्कुल साइड पे रख दो, अपनी आंखों से ओझल रखो और एक्टिव लिसनिंग की तरफ जाओ. और ये बड़ी नेचुरल होता है एक बैरियर कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है. आप अगर परेशान हो या ओवरली एक्साइटेड हो तो भी आप स्पीकर को उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे या उस तरह की अटेंटिव लिसनिंग नहीं दे पाओगे. ठीक हो गया. कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आ जाती है आपकी, एक्टिव लिसनिंग आ जाती है, एम्पैथेटिक लिसनिंग आ जाती है. ये बहुत जरूरी है व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर. ठीक है. और मे बी टू और मोर. सही है. तो इन सब बैरियर्स को हम ओवरकम नहीं, जहां हम जा रहे हैं, इफ वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम तो हमारा ध्यान टीचर की तरफ होना चाहिए, ना कि हमारे इर्द गिर्द. क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इस तरह लिख के बात करनी या आपस में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, काफी मसले होते हैं जो सॉर्ट आउट करने होते हैं, तो उनको भी आप बाद में रखें ताकि आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन हो सके. टीचर आपके लिए वहाँ है, आप वहाँ लर्निंग के लिए हैं, तो उसका बेहतर से बेहतरीन फायदा उठाया जाए और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाए. थैंक यू सो मच मैम. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन बैरियर्स को अवॉइड करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ अपना ध्यान दें. सो व्यूअर्स, आप जिस भी टॉपिक पे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, सेम चैनल सेम टाइम. अल्लाह हाफिज़.